In today's lecture, we will make some covalent bonds again, but we will make some double and triple bonds, more than one bonds from two or more elements. Previous lecture में हमने जिस तरह देखा कि CH4 or H2O. In that case, C was a central atom because carbon donated more or carbon shared more electrons than any of hydrogens, because hydrogen can only share only one electron, but carbon shares 4 electrons with 4 hydrogen atoms. So that was the central atoms. But the thing was that carbon atom shared 1 electron with 1 hydrogen atom, which means that they all will have only single bond with hydrogen atoms, right? But what if uh, one atom shares 2 electrons with another atom? Then what happens then? We will call it the multiple bonding. Okay, if if both the atoms share 2 electrons, then it will be called double bond. If both the atoms share 3 electrons, they will be called triple bonding. No more than 3 electrons can be shared in covalent bonding. The maximum limit for this covalent bonding is 3. You cannot see, you will not see more than 3 bond in covalent bonding. Let's see in our examples. We have to draw cross and dot structures of CO2 and HCN. Now you will see that how double bonds and triple bonds are made, because CO2 we will see double bonds, and HCN we will see triple bonds. Okay. First of all, problem solving strategy. Again, the same thing. Um, Central atom, you have to identify central atom, that that atom which uh, shares more electron than any of the atoms in this bonding is the central atom, and we have to draw that atom first. Okay, and show only its valence electrons, not the inner shells. Do not show its inner shells, just the valence shell electrons. Okay. Now, the central atom is so mostly shown by crosses. The central atom, the electrons of that atom is mostly shown by crosses, and others as dots. Okay. Um, and we have to complete the octet of the central atom first. Then we will satisfy the other atoms as they complete their duplet or octet respectively. Okay, there comes the CO2 structure. Now you know that in the carbon it has only 4 electrons in its valence shell, and it needs 4 more electrons to complete its octet. So it will share 4 electrons with other atoms to complete its octet, as well as complete their duplets or octets. So oxygen has 6 atoms, 6 electrons, sorry, in its valence electron, and oxygen will uh, require 2 electrons to complete its octet. Okay. Um, let us see in this diagram that you can see that carbon has a 4 electrons and oxygen has 6 electrons in its valence shell. Now oxygen needs only 2 electrons, but the carbon is sharing 4 electrons, or is capable of sharing 4 electrons. So what will it do? That 2 oxygen atoms can be attached to carbon atoms, because carbon can share 2 electrons to one oxygen atom, the other remaining 2 electrons to another oxygen atom to complete its octet, as well as the oxygen's criteria or requirement can be completed also, because it is receiving 2 electrons as a shareable electrons from carbon as well. Um, Let me take my pen here.
यहाँ देखें, कार्बन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा सा आपको इजी करके समझाने वाला हूँ। कार्बन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 2, 4 and 6. It only needs 2 electrons to complete its octet. ठीक है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा कि these 2 electrons are shared with oxygen atoms. Okay, these 2 electrons are shared with oxygen and carbon. Now oxygen के तो एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा जी, किस तरह 2, 4, 6 एंड 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट कंप्लीट्स हिज ऑक्टेट। बट फॉर द कार्बन के अभी 6 हुए हैं, 8 पूरे नहीं हुए। नाउ व्हाट विल हैपन दैट these 2 electrons are shared with this side and these 2 electrons are shared with this side. अब देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बन का किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 2, 4 means that on top of it 2 electrons are shared with another 2 electrons or oxygen atoms, means it has 4 electrons now there. 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए इसके, और इसी तरह सेकंड सिनेरियो में भी सेम यही चीज चलेगी। तो 2, 2, 4 यहाँ पर पूरे हो गए, 4 + 4 8 हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एज फार एज ऑक्सीजन इज कंसर्न, ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से शेयर करा लिए तो उसका भी ऑक्टेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और हमने देखा है कि शेयरिंग में क्या होती है कि हम उसका ओवरलैप करवाते हैं, जो उसका सर्कल है या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, दैट इज ओवरलैप्ड सच दैट कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कम्स इन द ओवरलैप पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप हुआ है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम। ठीक है, now the shared electron will be displayed in here in such a way that one electron and one dots and one cross are arranged. It means that कार्बन का एक डॉट एक क्रॉस के साथ हुआ है, शेयर हुआ। ठीक है, now you will see 2 dots and 2 crosses. It means that कि 2 dots और 2 crosses आपस में शेयर हो रहे हैं, that is represented by double bonds. It means that 2 electrons are shared, then the bond is double bond हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। अब देखिए दोनों साइडों पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो these can be represented as double bond which can be seen here. ठीक है, इसका लिखने का क्या तरीका है? कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इट मींस दैट कार्बन का यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। अब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, जो बाकी 2 बच गए उसने भी ऑक्सीजन के साथ बनाया। यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थे डॉट्स के साथ, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर 2 थे, इसी तरह यहाँ पर भी एक है और दूसरी ऑक्सीजन के पास भी एक है। लेकिन यू सी दैट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहे। ठीक है, only these electrons are shared and these electrons are shared. What about these 4 electrons? We will represent that in crosses on top of it, 2 and 4. ठीक है, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं है वो उसके ऊपर हमने टॉप पे उसको शो करा देने हैं ताकि हमें पता चले कि इसका ऑक्टेट किस तरह कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए कार्बन के ऊपर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे, इसका ये मतलब है कि कार्बन के सब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो चुके हैं। ओके, now the crosses or dots shown on top of the atom or element, it shows that those electrons are not shared, and okay, and these lines are shown as the covalent bonds. Okay, one line shows single bond, double line shows double bonding, triple line shows triple bonding, and only lines are shown in covalent bonds. Clear? Okay, on to the next. HCN. In this, carbon is attached with hydrogen and as well as nitrogen.
अब देखिए हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन हैज 5 electrons in its outermost shell. It needs 3 more electron to complete its octet or 8 electrons in its outermost shell. तो क्या करेगा कि कार्बन से फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। अब देखिए कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो कार्बन के फिर से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर शेयर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन खुद शेयर करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से भी शेयर लेगा। ठीक है। Now, for the problem solving strategy, you can see hydrogen has 1 electron, carbon has 4, nitrogen has 5. Okay. Carbon needs 4 electron to complete its octet. Hydrogen only needs 1, nitrogen only needs 3. Which means that carbon can donate or carbon can share 4 electron with both of these and still complete its octet. दोनों के साथ शेयर करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस दोनों के साथ शेयर कर दिया तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये इससे हमारी पूरी की पूरी जो एलिमेंट, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इनकी सारे के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं, विच मीन्स दैट आवर compound is stable and as well as covalent bonding is complete. What about electron dot structure? Now again, carbon is donating the most electrons, so it will be represented in the middle and as well as represented by its electron will be represented by crosses. ठीक है, crosses के साथ represent हो रहा है, और साथ में क्या हो गया कि हमने इसको मिडल में रखा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए। Now this dot can be shared with this cross, means that इसका ये देखें, कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने शेयर करके हाइड्रोजन का भी पास आ गया, तो इसके पास अब हो गए 5। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के पास कार्बन का एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। ना कार्बन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, अब ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वाले 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएंगे। देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, इस तरह बात नहीं होगी कि कार्बन ने 2 शेयर किए तो नाइट्रोजन ने 4 शेयर करने, ऐसी बात नहीं है। जितने ही इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट भी शेयर ही करेगा। ठीक है, सो these 3 will be shared to with nitrogen atom and these electron will be shared with carbon atom. So इसके पास हो गए थे पहले 5, कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए थे तो वो नाइट्रोजन से उसने शेयर कर लिए, तो 5 + 3 becomes 8. It means that the carbon octet complete हो जाएगा। Then what about नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का आप देखें कि आपके पास शुरू में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, शुरू में you had 5 electrons in the beginning, और उसने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने कार्बन से शेयर कर ली, which becomes 8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इट मींस दैट कि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होने से इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अब देखें कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर चले गए, ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये अनशेयर्ड है, तो हमने क्या करना है, इनको एज इट इज बाहर लिख देना। ठीक है, अब कार्बन का एक और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो भी शेयर हो गया, तो बाकी इसके पास कुछ नहीं बचा, तो हमने इसको किसी और चीज से रिप्रेजेंट नहीं करना। कार्बन के सब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने उसके भी बकिया इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहे, तो हम उसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। बट नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद भी बच रहे हैं जो अनशेयर्ड पेयर है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस एंड डॉट्स। अब देखिए कार्बन का अगर बात होती तो कार्बन में आपके क्रॉसेस आ जाते हैं, बट व्हेन इट comes to nitrogen, those electrons are represented by dots or circles, then that circle will be denoted as it is in the bonding. ठीक है, this is the electron dot structure, this is structural formula normally. Okay, now up until now
our covalent bonding is complete. From the next lecture, we will be discussing about some of the application of ionic bonds and covalent bonds in our daily lives. And up until now, you have any question regarding covalent compounds or covalent bonding, you can ask me any question. Okay, from the first lecture of covalent bonds to up until now third lecture of covalent bonds. What is covalent bonding, single bonding, triple bonding, how the bonds are made, how many electrons can be shared, how can we see that how many electrons are shared by certain atom. Okay, anything you want to ask me in the messages, so I will answer you. So questions are entertained right now. बच्चे बड़े कम आ रहे हैं आजकल, 56 भी, आज 55 आए हैं, पहले 70 के पास थे, बाकी लगता नहीं पढ़ना चाह रहे. Now you see कार्बन एटम. ठीक है, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब किस्म का लिखाई करूंगा मैं, bear with me. ठीक है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल का मतलब ये है कि उसका इनर शेल में इसका डुप्लेट पहले कंप्लीट है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट है, सॉरी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कार्बन को शो करते हैं तो दीज आर नॉट शोन, द इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल shell is not shown. Okay, this electron, these are 4 electrons. It means that 4 electron in this outermost shell, how many electrons remaining to complete its octet? It needs 4 more electrons to complete its octet. अब 4 ये इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए. देखिए अब ये मेटल भी नहीं है ना ये नॉन मेटल, ठीक है, सो इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर इसने लूज कर दी इसको पूरा का पूरा शेल ऊपर वाला तो चले खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ये लूज करता नहीं है ना ये गेन करता, बिकॉज इट हैज सच हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज सच हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इट विल नॉट लूज electrons and it will not gain electron because it will need a large amount of energy to release those electrons from its shell. ठीक है, तो it needs a large amount. Now what will happen that कि जितने भी इसके as you will see कि जितने भी इसके साथ बॉन्डिंग होगी, the carbon will tend to share all of these electrons so that it will gain 4 electrons from other elements. देखिए 4 एलिमेंट्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास, उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो उसकी कोशिश ये होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर ले किसी के साथ. ठीक है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरे से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा. ठीक है, शेयर करने का यही मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से शेयर करेगा. ठीक है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. ठीक है, लेकिन एट अ टाइम किसी के साथ फोर बॉन्डिंग नहीं होती, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है अक्सर. ठीक है, इवन कार्बन कैन बॉन्ड विद कार्बन अप टू 3 बॉन्ड्स. कार्बन कैन बॉन्ड विद कार्बन. अब देखिए 3 बॉन्ड्स कार्बन के साथ बन के जो बाकी का बॉन्ड है वो ज्यादातर हाइड्रोजन उसके साथ आता है. ठीक है, दिस इज, ये आप 10th के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कार्बन के साथ पूरा 2 चैप्टर है इसी चीज के. लेकिन आई डाइग्रेस. इशू ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 ही चाहिए, तो 4 ये शेयर करेगा किसी ना किसी फॉर्म के अंदर. अगर डबल बॉन्ड्स करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसी एक एलिमेंट के साथ, अगर 3 कर सकता है 3 करेगा, अगर नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 एटम्स के साथ सेपरेटली. ठीक है, जिस तरह हमने CH4 देखा था, C इसके पास एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है. अब ये बेसिकली फार्मूला है सुई गैस का, ये जो आपके घर में गैस आती है CH4 मीथेन दैट. अब देखें कार्बन, ये लाइन होती है, ये लाइन का मतलब है बॉन्ड्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहे हैं.
This line is represented as the sharing of electron between two elements. ठीक है, कार्बन का और हाइड्रोजन का एक शेयर हुआ हुआ है, एक वन लाइन रिप्रेजेंट वन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लाइंस मींस टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. ठीक है, अब देखें कार्बन और हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हुआ हुआ है. अब एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो गया कार्बन का. ठीक है, अब ये यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाइए, यहाँ पर इसके पास पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, 4 थे. जब उसने शेयर किया तो कितने हो गए, 5. ठीक है, सिंगल बॉन्ड 5 इलेक्ट्रॉन. सेकंड हाइड्रोजन आया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. थर्ड आया 7 हो गए. फोर्थ हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड फॉर कार्बन एटम. यू कैन सी कि कार्बन शुरू में ये था, एक हाइड्रोजन ऐड किया मैंने यहाँ पर, लिख दे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ 5 हो गए. एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ 7, वन मोर हाइड्रोजन एंड वन मोर हाइड्रोजन है 8. ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन completes one electron. ठीक है, adds one electron to this to its outermost shell because of the sharing of electron. ठीक है, अब देखिए 4 बॉन्ड्स का मतलब ये है कि अब एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा. ठीक है, अब हम जब इसकी इंडिविजुअली देखते हैं तो वो लाइन हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन के साथ भी. तो हाइड्रोजन के पास एक लाइन है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, नीचे वाले हाइड्रोजन का भी, साइड वाले हाइड्रोजन का भी, तो सबका डुप्लेट कंप्लीट है. कार्बन के भी देख लें 4 लाइंस है, 4 लाइंस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. कार्बन एंड ऑक्सीजन में समझा देता हूँ. ठीक है, अगर यहाँ तक कार्बन की समझ आ गई है कि कार्बन ने क्या करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करने हैं, तो आइदर के वो डबल बॉन्ड्स बना के करे, ट्रिपल बॉन्ड्स बना के करे. ठीक है, वो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ दोबारा से. नेम एनी एलिमेंट दैट इज फुली स्टेबल. हीलियम, उसी से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियॉन, जियॉन, आर्गॉन, 8A ग्रुप का. ठीक है, दैट नोबल गैसेस आर स्टेबल, फुली स्टेबल एट इट्स ओन. उसको जरूरत ही नहीं किसी के साथ बॉन्डिंग करने की, वो एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होता वो कभी भी. मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब ये कि जिस तरह O2 है, H2 है, ये हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर स्टेट है. एटॉमिक स्टेट क्या होता है कि सिंपल वन एटम एग्जिस्ट करता है, वो दैट इज ओनली द केस इन नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, व्हाटएवर यू कॉल इट. कार्बन और ऑक्सीजन और मैं डिफाइन ट्रिपल बॉन्डिंग भी एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको, यानी कि एक ही एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देता हूँ. डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी उसी के साथ ही हो जाएगा. Sir, as you have said that HCN is sharing more electrons. But HCN itself is a compound. C is sharing most electrons, but N is having more electrons than C. नहीं, ऐसी बात नहीं है. ये मैं आपको बताता हूँ, because for triple bonding HCN के ऊपर मैं आता हूँ मैं. ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ, आई होप आपको ये नजर आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज आप ये जो लेक्चर है ये आप 26 मिनट के बाद देखेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ठीक है, 26 मिनट्स आफ्टर 25-26 मिनट्स. अच्छा, व्हाट अबाउट HCN? See, I know that carbon is donating more electrons. 4 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा. नाइट्रोजन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब शेयर कर रहा है, कार्बन 4 कर रहा है, हाइड्रोजन 1 कर रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इट मींस देखें, अब शेयरिंग कैसे पता चलती है कि उसने शेयर कितने करने हैं. अब देखें, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4. नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, 5. हाइड्रोजन ओनली 1. How many electrons should I add to complete its octet or duplet? 4 plus how many is equal to 8. 5 plus how many becomes 8. 1 plus how many becomes 2, because oxygen हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, अब देखें, कार्बन नीड्स 4 electrons and nitrogen needs 3 electrons, hydrogen needs only 1 electrons. Now this one, how many electrons they need is how many electrons they share. यानी कि जितने ही उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उतने ही वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. अब देखिए, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि किसने
ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। क्लियरली है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। दैट इज वाई कि वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ही गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है। सो दैट इज द केस दैट द कार्बन इज द सेंट्रल एटम बिकॉज इट इज sharing most electrons between this molecule. Okay, I hope this is clear. Now we will come to triple bonding or double bonding. First of all, H2 CO2, carbon dioxide, basically. Okay, CO2, it means that carbon will be requiring 4 electrons, right? And oxygen only needs 2 electrons. Oxygen सिर्फ और सिर्फ 2 electrons चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि 2 electrons इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का क्या है कि 1 2 3 4 5 and 6, it has 6 electron, it is in its outermost shell, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है outermost shell में, and it requires only 2 electrons, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो शेयर कितने करेगा? ये 2 ही करेगा। जो उसके पास एग्जिस्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेगा, ठीक है। लेकिन शेयर अगर 2 और के साथ करेगा तो उसके पास 2 की कमी भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो शेयर जो कर रहा है वो खत्म नहीं हो जाते उसके पास। ऐसी बात नहीं है कि उसने डोनेट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जो शेयर कर रहा है बेसिकली वो उसके पास पहले के हैं, वो दैट विल बी यूटिलाइज्ड एज इट इज, बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू इट्स आर्सेनल। उसके पास वो वाले 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास ऐड हो जाएंगे। अगर वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, फॉर एग्जांपल दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, देन you can see 2 1 2 3 4 5 6 and 2 more from carbon 7 and 8। अब कार्बन से उसने शेयर कर लिए तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यू कैन सी हियर कि कार्बन से ऑक्सीजन के साथ, अब देखिए कार्बन के साथ 2 और इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसने भी 2 शेयर करने ताकि वो कार्बन भी स्टेबल हो जाए, तो क्या करेगा? एक और ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्डिंग कर लेनी है। ऑक्सीजन की एक और ऑक्सीजन के साथ, कार्बन एक और ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और साथ में कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दैट इज व्हाई दैट इज द केस ऑफ CO2। ओके, यू कैन सी कार्बन ने इसके साथ किए, तो बाकी इसके पास अनपेयर्ड या अनशेयर्ड पेयर कितने हैं? 2 पेयर हो गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अनशेयर्ड है। सही है। दैट इज बिकॉज के जितने भी उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, अगर एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और दूसरा भी अगर 2 या 2 से ज्यादा डोनेट कर सकता है, तो दैट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स या दैट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो एक ही कर सकता है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा तो शेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कोई ऐसा एलिमेंट कि जो या ऐसा एटम जो 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत रखता है, दैट विल शेयर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसी बात नहीं होगी कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया और उसके बाद छुट्टी होगी, नहीं। ये हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन भी अटैच हो रहा है तो फिर ये वाला नहीं होगा, लेकिन हम इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भी सिनेरियो आएगी, हम इंशाल्लाह 10th के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि कार्बन के बॉन्ड्स 4 होते हैं, ठीक है। कार्बन ने 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, बिकॉज उसके बाद जितनी की कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है उतने ही शेयरिंग करते हैं वो, ठीक है। अब जिस तरह आयनिक बॉन्ड में था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या उतने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स की इनको कमी थी। लेकिन इसमें यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की इनको कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इनको जरूरत है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट्स उनकी सारी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाता तो फिर मसला है, फिर वो ये करेंगे 2 मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे। Any atom that share more electron, it will place in center. Yes, any element that shares most electrons will be in the center. But if there is only 2 electrons, like 2 elements, like O2, oxygen, there is no central atom. Okay. जब वो 2 ही एलिमेंट्स है तो उसमें सेंट्रल एटम तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 है। अगर कंपाउंड है, बहुत बड़ा सा कंपाउंड है जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सेंट्रल एटम आपको दिखाना लाजमी। इसमें ये होता है कि आपको बॉन्ड बनाने में इजी हो जाती है,
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि सेंट्रल एटम बीच में लगाने से ये होता है कि आपके बॉन्डिंग्स कंप्लीट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर आप पेपर्स के अंदर करेंगे तो नंबर्स आपके पूरे मिलेंगे। अच्छा, और जिन जिन को स्लाइड्स वगैरह का थोड़ा इशू है, आप मैंने आपको बताया कि 25 मिनट के बाद आप वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, 25 मिनट के बाद से ये आपके क्वेश्चंस वगैरह मैं आप ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आपने किया था कि HCN C is sharing most electron but N is having more electrons than C, so why don't N is in the middle? ये वाला मैंने आंसर आपको दे दिया, क्योंकि the the element that shares most electron, जो सबसे ज्यादा शेयर करता है, that will come in the middle. कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, आई डोंट केयर कि भाई उसने 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, सिंगल के साथ किया, ठीक है, लेकिन उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, तो वो मिडल में आएगा। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, उसने साइड पे आना है, ठीक है, जो जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन दी है वो मिडल में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको समझा देते जब ट्रिपल बॉन्डिंग पे हम आते हैं। ओके, नाउ कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट्स और द लाइंस। ओके, सबसे पहले हम थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डिंग की तरफ देखते हैं। HCN, ओके, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीन दोनों के बीच का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को। कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन नीड्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखिए, कार्बन के 4 और ये 4, सॉरी 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि 4 ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन भी किए होंगे शेयरिंग में, तो 4 + 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे फाइनल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने ये 3 शेयर ले लिए, तो 5 + 3 बिकम्स 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने कार्बन से एक और शेयर ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज one way to represent the covalent bonding. Other way to represent the covalent bonding is by dot and cross. Okay, now I know कि सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा डोनेट किए हैं या उसने सबसे ज्यादा शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन विल बी इन द मिडल। और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि ये हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये मैं उसको डॉट के साथ बना रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन आई विल मेक विद येलो, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस के साथ। बेसिकली ये होता है कि कार्बन जो मिडल सेंट्रल एटम है उसको हम क्रॉसेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जरूरत नहीं है इतनी, आप इसको डॉट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में डिफरेंशिएट हम कर सकें इजीली। ठीक है, एंड नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इट मींस दैट एक पेयर यहां पर होगा, सॉरी ये सही नजर नहीं आ रहा, 1 माउस पे थोड़ा सा, ठीक है जी। नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड नाइट्रोजन विद 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, अब उसके पास आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू विल सी हाउ मेनी इट नीड्स। इट हैज 5 electrons, it has 4 electron, it has 1 electron, but how much they need? इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इट मींस दैट ये जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही आपने
शेयर करने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस दैट इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, जो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर करने। इसने क्या मतलब है कि ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये ऊपर वाले 2 मिला के कर लेगा शेयर, बट इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा कि ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके कार्बन के, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉट्स के साथ बना दिया। दिस विल बी शेयर्ड, दिस विल बी शेयर्ड, दिस विल बी शेयर्ड। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 3 और कार्बन के इसने अपने पास भी शेयर रखे हुए हैं, अपने भी इसके 5 थे, तो 5 + 3 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, तो इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 इसके अपने पहले थे, 3 और शेयर करके 4 + 3 = 7। नाउ इट विल बिकम 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटरमोस्ट शेल में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको एक चाहिए कार्बन को। तो क्या करेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके 7 + 1 8 कर लेगा। तो हाइड्रोजन ने जब शेयर किया तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो पूरी होगी, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जब ये बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको हमने शो कैसे करना है? शो हमने ऐसे करना, सॉरी मैं थोड़ा सा सर्कल बना, ये ठीक है, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम। ये मैं इसको छोटा इसीलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे है, सॉरी, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम। अब देखें, कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 3 शेयर कर लिए, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो आपको थोड़ा सा इजी समझ आ जाएगा। अच्छा, येलो इज रिप्रेजेंटेड एज नाइट्रोजन एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन व्हिच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके पास कार्बन का जो था क्रॉस अगर मैं बना दूं, हाइड्रोजन का था डॉट, इसका ये शेयर हो गया। अब ये मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने, ये नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उसके भी 3 डॉट्स शेयर हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, लेकिन 3 ही डॉट क्रॉसेस कार्बन के साथ भी शेयर हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। इट मींस दैट ये देखें, अब ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये कार्बन की और ये हाइड्रोजन की, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन एज, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये वाला जो हमने बात की थी कार्बन के साथ